Assalamu alaikum, good morning and welcome to this focus group discussion. My name is Sania Qureshi and I am your moderator for this session. Firstly, I would like to thank all of you present here for participating in this discussion. The topic of this discussion is digital and social media, their opportunities and dangers. I'm sure you've all used some form of digital or social media in your life, right? Yes. Yes. So before starting this discussion, let's first get to know each other. So what I would like you to do is we will go around the table, and I would like, if you want, then you can all tell your names and tell us what social media or digital media platform or app you use the most and why you use it. Okay, so you can begin after thinking. I am Tanazza Tamjeed. I mostly use Facebook for entertainment. Okay. This is Mariam J. I use the most app is WhatsApp for communication with friends and for work. I am Nazish Iqbal. Mostly used app, according to me, most used app is Instagram because we can stay connected to people around the globe. This is Nosheen Siddiqui. I mostly use application is Twitter, जो कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहने में मदद करती है और आपस में हम न्यूज़ भी हमें आराम से मिल जाती है. Okay. So that means that you mostly use it for communication purposes, right? So now can you think of any opportunities that you have observed or that you have gotten from using any form of digital or social media? Like you can tell us from your own experiences or from those from people around you. We can meet others with shared interests all over the world and discuss those interests together with them. Okay, so can you tell me how we can do that? हम नाजिश? ईज़िली उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं जो हम जिनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मैच करते हैं और फिर उनके साथ कनेक्ट हमारा करना इजी हो जाता है हमारे लिए. Okay. And we can also help people in social awkwardness. Okay, Tanaza, can you tell me how it can help people who are socially awkward? Can you elaborate on that? या सोशल मीडिया के ज़रिए हम फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते हैं. ऑनलाइन इंटरेक्शन करने से हमारी सोशल स्किल्स बिल्ड होती हैं और ये हमारी ऑफलाइन लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें जो है हेल्पफुल होता है. Okay, I see. It can help in our studies and education. Okay, so Maria, can you tell me how it can help in our studies? In what ways? Higher classes can learn so many things through it. सोशल मीडिया ऐप्स हम अपने टीचर्स को व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं, क्लासरूम, जूम, किसी भी ऐप पे ऐड कर सकते हैं. एंड इसके ज़रिए हम बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं, कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं, etc. ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं. इसको फर्दर ऐसे एक्सप्लेन करा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ऐसी ऐप्स अब आ गई हैं जिनमें हम मतलब ऑनलाइन ट्यूटर हमें मिल जाते हैं इजीली और हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के टाइम में हम लोग घर पर थे तो ऐसा नहीं था कि पढ़ाई बंद हो गई थी और बहुत इजीली हम लोग एजुकेशन हासिल कर रहे थे घर में बैठ कर भी. तो इसमें भी हाँ सोशल मीडिया ऐप्स बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं. जी नाजिश, बिल्कुल. It is the best platform for business out of Pakistan and everyone can do online earning. Okay, so Nosheen, can you tell me how have you ever done it yourself or have you seen any other people do it and in what ways have they done it? यस मैंने ख़ुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है और स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन जो है अर्निंग कर सकते हैं, जो कि अर्निंग उनकी स्टडीज़ में या और कामों में भी काम आ सकती है. इसके अलावा बाहर पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि अर्निंग कर रहे हैं, घर पे बैठ के पाकिस्तान में बैठ के बाहर काम कर रहे हैं और अच्छी जो तनख्वाह उन्हें मिल जाती है, अच्छा वो काम कर लेते हैं. Okay. Another opportunity of social media is its bigger advantage is
social media is entirely free to start. Only investment you need to make is in form of time. Okay, so Nazish, can you tell me how we can see that as an opportunity? जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे ब्लॉगर्स, जैसे आजकल हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं ब्लॉगर्स यूट्यूब हो गया, तो इसमें जब आप वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो अर्न तो कर रहे हैं उसमें, लेकिन जब उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट देकर नहीं आए, वो फ्री आए हैं, लेकिन उसके थ्रू वो अर्न कर रहे हैं. Okay, so right. रिसर्च में भी हेल्प कर सकते हैं. अच्छा मारिया, आप बता सकते हैं कि रिसर्च में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? जैसे ऑनलाइन सर्वेज होते हैं, रिसर्चर्स अपने सर्वेज ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं. ऐसे टाइम भी सेव होता है और कन्वीनियंस भी नहीं होती. कन्वीनियंस भी हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है. जी जी बिल्कुल. इसमें एक और पॉइंट ये हो सकता है कि आपका ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड हो सकता है. वो इस वे में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया कि ब्लॉगर्स होते हैं, तो ब्लॉगर्स जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट अपने प्रोफाइल पर लगाते हैं, तो उसमें जो कमेंट्स और लाइक्स वगैरह आते हैं, तो उनको पता चलता है कि किस टाइप की ऑडियंस उनको अप्रोच कर रही है और जो ऑडियंस उनको अप्रोच नहीं कर रही वो क्यों नहीं कर रही. तो इसके लिए वो जो स्पॉन्सर्ड जो होते हैं उनको ईजी होता है अपना चीज़ों को अच्छा और करने के लिए, कि ताकि उनके पास लोग आएँ वो चीज़ लेने के लिए. ओके, तो नाजिश मतलब आप ये बोल रही हैं कि इसको इस तरीके से एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं. जी. सही है. It can also help in businesses. How can it help in businesses, Tanasa? Through social media, businesses can promote their brands and products. So एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं हम सोशल मीडिया को, और इसके ज़रिए हम क्लाइंट से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं. सही. तो किस तरीके से हम क्लाइंट से कर सकते हैं इंटरेक्ट, मतलब कौन से चीज़ को यूज़ करते हैं? बिजनेस अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं जिसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं, और वेबसाइट्स के ज़रिए भी बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं और वेबसाइट के ज़रिए भी ये सारे क्लाइंट्स जो हैं इन्हीं पर्पसेस ये सारे क्लाइंट्स जो हैं ये सब देख सकते हैं, और वेबसाइट्स भी इन्हीं पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं. जी सही है तनज़ा. It helps us to find out the routes through GPS and online shopping. So you're saying that it can help us in travel and it makes our buying and selling like purchases and all, it makes it easier, right? Yes. ये इस तरह से हमारे काम आता है कि अगर पाकिस्तान से बाहर कोई जा रहा है या बाहर से पाकिस्तान आ रहा है, या हम पाकिस्तान ही इधर उधर कहीं काम से या वैसे जा रहे हैं, तो हमें GPS से रास्ता देखने में या मालूम करने में या जगहों का जो पता लगाने में, या कहीं हम स्टे कर रहे हैं होटल्स वगैरह में, तो उसमें भी ये बहुत काम आता है. तो मतलब फिर ये कैसे होता है, इसमें जो आपने चीज़ें मेंशन की हैं इसमें ये कैसे हेल्प करता है? ये इस तरह से कि अगर हमें कहीं पर जाना है तो इट्स नेसेसरी कि हम वहाँ की पहले से रेटिंग्स मालूम करें, हम पता करें कि वो होटल कैसा है, एक जगह कैसी है. तो इस तरीके से भी बहुत सोशल मीडिया हेल्प करता है, और स्पेशली टूरिस्ट की जो बाहर से आ रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि पाकिस्तान कैसा है, या किसी और मुल्क जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं होगा कि कनाडा से US जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो कैसा मुल्क है. तो इस सोशल मीडिया के थ्रू वो रेटिंग्स चेक करते हैं, मालूम करते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, तो जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि जगह कैसी है, कहाँ स्टे करना उनका ज़्यादा बेहतर रहेगा. Okay, so Nausheen, so can you tell me something about how it helps in online shopping as you mentioned before? Yes, it's very helpful, क्योंकि मैं स्पेशली मार्केट्स वगैरह मॉल्स घूमने की शौकीन नहीं हूँ, तो मुझे घर पे ही हर चीज़ चाहिए होती है. तो मैं इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं जो ऑर्डर कर लूँ और घर पे मुझे हर चीज़ मुहैया हो जाए. इसके अलावा ऑनलाइन फ़ूड भी हम मंगवा सकते हैं, मतलब जिस टाइम भी हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमें 10 बजे चाहिए कोई चीज़, 11 बजे चाहिए, 12 बजे हमें मिल जाती है ऑनलाइन. जी. और हमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मिल जाती हैं. मतलब मेरी एक छोटी भांजी है, वो बड़ी ज़िद करती है, रात में उसे चाहिए होती है कोई ना कोई चीज़, तो
ऑर्डर कर दें तो इजी रहता है, बाहर नहीं जाना पड़ता। ओके, तो मतलब इसमें आपकी काफ़ी आपको कन्वीनियंस होती है ना इससे। यस एग्जैक्टली। ये सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है हमें बेटर सर्विसेज इस तरह से कि जैसे नौशीन ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग का, उसी तरह हम इजीली उनको रिव्यूज़ दे सकते हैं और वो हमारे रिव्यूज़ से अपनी कंपनी और जो भी वो ब्रांड है वो उसको या तो अच्छा कर सकते हैं, या उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं जैसे हमें पसंद नहीं आ रही, या लाजमी नहीं है कि रिव्यूज़ अच्छे हों, बुरे हों, रिव्यूज़ अच्छे भी हो सकते हैं। तो इसमें भी सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा नाज़िया साहब, आप इस बात में कोई कुछ ऐड करना चाहती हैं? इसमें ये ऐड हो सकता है कि हम इश्यूज़ को 1-on-1 रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे लिए कुछ हमें अगर हम फिज़िकली मॉल्स में जाएं तो अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो, या उसका साइज़ का इशू है, तो अगर हम जब घर आके वो देखते हैं तो साइज़ का इशू होता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है दोबारा उस जगह पर जाना और फिर रिटर्न करना। लेकिन अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम जो ब्रांड है उनकी कुछ पॉलिसीज़ पहले से आपको दी हुई होती है। अगर उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है एक्सचेंज पॉलिसी है तो फिर आप उनको मैसेज कर सकते हैं और वो अपना कोई सा भी स्टाफ मेंबर भेज के वो आपका चीज़ लेके चले जाएंगे और फिर आपको जो आपकी मतलब शिकायतें हैं वो ख़त्म करके वो आपका प्रोडक्ट आपको वहीं घर आके दे सकते हैं, तो इसलिए ये इजी होता है। ओके, और इसका एक और पॉइंट ये हो सकता है कि वी कैन रीच लार्ज ऑडियंस सोशल मीडिया के थ्रू। सही। Okay, so would any of you like to add anything on to this, to the opportunities that digital and social media present us with? No. Okay, so then let's move on. So you've all mentioned the opportunities that we can get from social media, right? So besides these opportunities, are there any dangers or any problems that can occur from using any sort of digital or social media? Yes. Okay, so then can you think and present us with some dangers that can be gotten from using any form of digital or social media? यू कैन रिसीव नेगेटिव फीडबैक। इसको फर्दर ऐसे एलेबरेट करा जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बिज़नेस में अगर हम इसको लें तो आपका बिज़नेस बिज़नेस जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया अपॉर्चुनिटीज़ में कि आपके अच्छे रिव्यूज़ भी आ सकते हैं, बुरे रिव्यूज़ में भी आ सकते हैं। तो अगर आप बुरे रिव्यूज़ में ये देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ फॉर एग्जांपल PR भेजा है किसी ब्लॉगर को, तो अगर फॉर एग्जांपल उसको कुछ पसंद नहीं आया तो वो अपनी सोशल मीडिया ऐप्स पर आपके बारे में बुरा रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, और उसके वो जो रिज़ल्ट हो सकता है ये हो सकता है कि उनकी जो ऑडियंस है जो उस ब्लॉगर को देख रही है वो उससे इफ़ेक्ट हो के आपका प्रोडक्ट शायद अगर अच्छा हो तब भी ना ले, तो इसका ये नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपके बिज़नेस पे पड़ सकता है। ओके नाजिश, तो बेसिकली आप ये बोल रही हैं कि वैसे एक तरीके से बिज़नेस में आपको प्रमोशन में हेल्प कर सकता है, उसी तरीके से वो आपके बिज़नेस को ख़राब भी कर सकता है, कि वो मतलब मेक और ब्रेक वाली चीज़ हो गई कि वो बिज़नेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, राइट? सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इससे हम अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ऑनलाइन वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम रियल वर्ल्ड को भूल जाते हैं। अच्छा तनज़्ज़ा, सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल फॉर दैट कि कैसे हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली से? आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ हो या आपने कुछ ऐसा किया हो या किसी और के साथ, तो वो बता दें। जी, हम अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हमारी डेली रूटीन में ये शामिल है कि हम जो है मोबाइल के बगैर या सोशल मीडिया के बगैर हम खाना भी नहीं खा सकते, अपनी फैमिलीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं देते। जो क्वालिटी ऑफ टाइम हम अपनी फैमिलीज़ को देना चाहिए वो हम अपनी फैमिली को नहीं दे पाते सोशल मीडिया मोबाइल की वजह से। हमारी जो है हेल्थ भी काफ़ी अफेक्ट करती है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि आजकल जो है अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, कोई हमारे घर मेहमान आ रहा है, तो सब सिर्फ मोबाइल में लगे होते हैं। हम एक दूसरे से बात नहीं करते और जो है हमारी फ़िज़िकल इंटरेक्शन भी कम होती जा रही है और हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये एक डिस्ट्रैक्शन भी बन गई है। अच्छा, तो ये किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन बन गई है हमारे लिए? लाइक ये इस तरह एक डिस्ट्रैक्शन बन गई कि जैसे हमारा एग्ज़ाम होते हैं तो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम फ़ौरन मोबाइल की तरफ भागते हैं, या हम कोई भी वर्ड देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं, वर्ड का मीनिंग देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं।
तो हम सोशल मीडिया ऐप से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इससे आजकल दूर वाले जो रिश्तेदार हैं वो पास हो गए हैं और पास वाले लोग दूर हो गए हैं। तो मतलब ये एक मतलब एडिक्शन भी बन गई है ना? जी, ये एक एडिक्शन भी बन गई है। इट कैन गिव राइज टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको फर्दर अच्छा, तो नाजिश साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे राइज हो सकता है, इसकी एग्जांपल दे सकती हैं? ऐसे इसकी एग्जांपल हो सकती है कि इट इज़ ईजी फॉर अ पोस्ट टू गो वायरल ऑन सोशल मीडिया, लेकिन और लोग हमारी उस पोस्ट पर इंटरेक्ट भी करते हैं और उस पर बहुत मतलब नज़र रखते हैं। अगर इसको बोला जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ अच्छा पोस्ट कर रहे हैं, बुरा पोस्ट कर रहे हैं, लोग हमारे उन दोनों पोस्ट को देखेंगे। और अगर हम पोस्ट जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, अगर हम उसमें पोस्ट करते हुए केयरफुल ना हो तो इसमें हम अपनी ही सेल्फ एस्टीम को कम करने की वजह बन सकते हैं और इसमें और साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को राइज मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों का लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और उनका लोगों से इंटरेक्ट करने का फिज़िकली या सोशली इंटरेक्ट करने का वजह कम, मतलब वो उनसे इंटरेक्ट करना कम कर देंगे। मतलब एक तरीके से सोशल एंजाइटी भी हमें हो सकती है। जी, it can badly affect on our mental health and harm our youth. Okay, so would you like to elaborate on that, how it can have a negative effect on our mental health? यस, ऐसा है कि 3 घंटे से ज़्यादा अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वो एक स्क्रीन एडिक्शन में जो है हमारे अंदर आने लगती है बात। तो आजकल जो हमारी यूथ है वो तकरीबन पूरे दिन ही इस्तेमाल कर रही होती है। अगर 3 घंटे तक आप कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। फिर वो सोशल मीडिया हो या कोई भी चीज़ हो, सिगरेट हो, खाना हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से जब पूरा दिन हमारी यूथ इस्तेमाल करती है तो गलत चीज़ें भी उनके सामने आती हैं, अच्छी चीज़ें भी आती हैं। जब गलत चीज़ें आती हैं तो ज़ाहिर है वो तो जब बुरी चीज़ें उनकी आंखों के सामने आती हैं तो वो या तो देखते हैं या तो हटा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा अफेक्ट पड़ता है। और बच्चे जो हैं छोटे आजकल वो स्कूल से आते हैं बस मोबाइल में लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो मोबाइल दे देते हैं और फिर पता बिल्कुल भी नहीं होता कि क्या चल रहा है मोबाइल में, क्या नहीं चल रहा। बच्चे पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है और दूसरी बात वो ऐसी चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं जो उन्हें बहुत हार्म करती हैं। तो मतलब एक तरीके से ये बच्चों की डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है और हम लोग की प्रोडक्टिविटी को भी कर रहा है। एग्जैक्टली। अब जैसे पहले होता था कि बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, नए नए तरह के खेल होते थे, उनका जो दिमाग होता था वो उसकी सलाहियत जो होती थी वसी होती थी। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि बस वो मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियोस देख रहे हैं और गेम्स वगैरह जो खेल रहे हैं। गेम्स जो हैं ये भी बहुत बुरा अफेक्ट डालते हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं। इससे हमारे जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं उनके जो है बैडली अफेक्ट होता है उनकी मेंटल हेल्थ पे। और वो या तो कनेक्ट करते हैं किसी से और फिर उसके बाद फिर पेरेंट्स जो है रोते हैं, परेशान होते हैं। ज़ाहिर है जब पेरेंट्स देंगे ऐसी गैजेट्स हाथ में तो फिर बच्चे तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसमें यही पॉइंट इंक्लूड हो सकता है। इसमें फर्दर ये पॉइंट ऐड हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने गेम्स की बात करी और कि भाई गेम्स, और इसमें ये एक गेम हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबको पता ब्लू व्हेल एक गेम थी जिसमें मतलब वो ऐसा आपके ब्रेन को माउफ कर देती थी कि आप उनकी बात सुन के सुसाइड करने लग जाते थे। और फॉर एग्जांपल जैसे टिकटॉक पे काफ़ी टाइम तक टिकटॉक बैन कर दी गई थी क्योंकि लोगों ने ऐसे ट्रेंड बनाना शुरू कर दिए थे जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है सोशल मीडिया का। बच्चे पहले इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पहले छोटे बच्चे बाहर खेलने जाते थे, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती थी। और अब वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और मामा पापा का कहना नहीं मानते। इसमें एक और पॉइंट ये ऐड हो सकता है कि यू हैव टू फेस मैनी नेगेटिव ओपिनियन, जैसे इसमें आ जाएगा ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग एक्सेट्रा। और इसकी वजह से भी हमारी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उसमें भी फिर इसी वजह से भी आप लोग सुसाइड करना और लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं क्योंकि
उनको ऐसे डिफरेंट ओपिनियन फेस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा देयर इज़ नो प्राइवेसी इन सोशल मीडिया। अगर आप कोई चीज़ डालेंगे तो ज़ाहिर है उस पर नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे और अच्छे कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं वो इंसान की मेंटल हेल्थ को बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है सोशल मीडिया सिर्फ अपनी जो है थोड़ी सी नॉलेज या और कामों के लिए, रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम वैसे अपनी प्राइवेट चीज़ें डालते हैं तो फिर हमारी जो है मेंटल हेल्थ बहुत बुरे तरीके से हार्म होती है। इसमें एक और पॉइंट ऐड ये हो सकता है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और थॉटफुलनेस। इसमें ये हो सकता है कि मतलब अगर हमने किसी को अपना कुछ बात बतानी है, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, वो हम वॉइस मैसेजेस या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितना हम फेस टू फेस फिजिकली वहाँ प्रेजेंट, वो सामने हमारे वो बंदा बैठा हुआ हो, उसको ज़्यादा आसानी से हम अपनी बात समझा सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम उसको मैसेजेस पे या वॉइस पे समझाएं। और इससे हमारी डेली रूटीन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अच्छा तनज़्ज़ा, तो इसमें डेली रूटीन किस तरीके से हमारी अफेक्ट होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को आदत हो गई है कि हम जो है रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, और ये सबकी आदत हो गई सबसे पहले मोबाइल देखने की सुबह उठते ही, और इससे हमारा जो है और इससे हमारा स्लीपिंग स्केड्यूल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। Okay, Tanaza, thank you for your input. And would anyone else like to add any other point? No. Okay, so then before we end our session, let's conclude this by each of you adding one point one by one, in which you can tell us what point from this entire discussion do you think is most important. Like for you, is social media more of a platform to get opportunities from, or is it more of a danger? Okay, Nazish, so would you like to add something first? अकॉर्डिंग टू मी सोशल मीडिया के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम मैंने एक पॉइंट हमने पीछे डिस्कस करा था कि हम इजी इसको फ्री यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देनी पड़ती, लेकिन इसके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और सारी फ्रीलांसिंग एप्लीकेशंस। Okay, so for you it gives us more opportunities, right? यस। Okay, then, okay, and Tanaza, what do you think about this? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हम सब के लिए, ये क्योंकि ये हमारी जो है सबसे ज़्यादा जो है हमें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे जो है लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Okay, so Tanaza, according to you, we also get more opportunities from social media, right? Okay, so and Maria, what do you think about this? मेरे हिसाब से इसकी अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन इसकी डेंजर्स बहुत हैं। लाइक इसमें टाइम वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये एक एडिक्शन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ हार्म होती है। So for you, it's more of a danger than Yes. than an opportunity gaining platform, right? Yes. Okay, then Nausheen, what about you? What would you like to say about this? हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। और लेकिन नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। और फ़ायदा इसका ये है कि वी कैन अर्न थ्रू इट, फ्रीलांसिंग के थ्रू हम इससे अर्न कर सकते हैं। Okay, Nausheen. So for you, it's a bit of both, right? Yes. So for anyone of